Hello students, today in this video I am going to teach you chapter 2, Bringing Up Kari. This story is about a 9-year-old boy and a 5-month-old elephant whose name is Kari. Both of them grew together, and the first thing which Kari did was to save a boy. Kari was like a baby and full of mischief. One day he developed the taste of bananas, and since then he took all steps to steal the bananas. And the narrator got angry and he scolded Kari for his mischief. The narrator took all efforts to teach elephant how to walk, how to sit down, and the most difficult and the most important thing was to teach master call. So master call is a strange rising sound which can help the master to reach home. If one is lost in the jungle, so with the help of the master call you can reach at your home. So Kari took 5 years to learn it properly. Let's start reading of this chapter. Kari, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. Kari doesn't eat much, just about 16 kilograms of delicious twigs a day. Playful and sensitive, Kari saves a boy from drowning. Kari, a 5-month-old baby elephant. Kari 5 महीने का था, एक बेबी एलिफेंट है. लिव्स एंड ग्रोज अप विद हिज 9-year-old फ्रेंड एंड कीपर. और वह अपने 9 साल के फ्रेंड के साथ रहता है और जो उसके साथ उसका ध्यान भी रखता है. Kari doesn't eat much. वो ज़्यादा कुछ नहीं खाता. Just about 16 kilograms of delicious twigs a day. लेकिन वो 16 किलोग्राम delicious twigs खाता है. Twigs मतलब टहनियाँ. Playful and sensitive. वो बहुत ज़्यादा sensitive है और playful है, मतलब वो खेलता रहता है. Kari saves a boy from drowning. और Kari एक बच्चे को बचाता है डूबने से. Kari the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. Kari 5 महीने का था जब मुझे उसकी देखभाल का काम मुझे दिया गया. And I was 9 years old. और वो 9 साल का था. I could reach his back. वो उसकी बैक पर, पीठ पर आराम से पहुंच जाता था. If I stood on tiptoe, अगर वो पैरों के पंजों के बल पर खड़ा हो, टोस पर खड़ा हो, तो वो इजीली उसकी बैक पर पहुंच जाता था. We grew together. वो एक साथ बड़े हुए. That is probably why I never found out just how tall he was. और इसीलिए शायद मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब कितना लंबा हो गया. He lived in a pavilion. वो एक pavilion में रहता है. Pavilion is a shed जहाँ पे एनिमल को रखा जाता है. He lived in a pavilion. वो pavilion में रहता है under a thatched roof. Thatched roof means a roof which was made of dry straws. मतलब घास फूस की छत बनी होना. Which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Kari bumped against the poles as he moved about. So उसके ऊपर घास फूस की छत थी और इस छप्पर को मोटे से स्टम्प्स, ट्री के जो ट्रंक है उसके बेस पर रखा हुआ है, ताकि जो Kari है व्हेन Kari बम्प्ड अगेंस्ट, अगर Kari टकराता भी, बम्प्ड अगेन मतलब हिट करना, द पॉल्स, अगर वो पॉल्स को हिट भी करता है एज ए मूव्ड अबाउट, तो वो गिरे नहीं. वो जो रूफ है वो गिरे नहीं. उन्होंने इस बेस पर उसको स्ट्रांगली बांध रखा है. One of the first thing Kari did was to save the life of a boy. और सबसे बड़ा काम जो Kari ने किया वो एक बच्चे की उसने जान बचाई. Kari did not eat much. वो ज़्यादा कुछ नहीं खाता है, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. लेकिन Kari को चबाने और खेलने के लिए लगभग 40 किलो 40 पाउंड्स मुलायम ट्विग्स, जो सॉफ्ट ट्विग्स हैं, उनकी ज़रूरत होती है ताकि उन्हें वो खा सके, उनके साथ खेल सके. एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर. हर दिन मैं उसे मॉर्निंग में रिवर किनारे ले जाता था फॉर हिज बाथ, उसे नहलाने के लिए. ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड. और वो आराम से वहाँ पर लेट जाता था रेत पर, बैंक, रिवर के किनारे.
While I rubbed him with the clean sand of the river for an hour, और मैं उसकी 1 घंटे तक उसके शरीर को और नदी शरीर पर अच्छे से वो रब करता था रेत से। आफ्टर डैट उसके बाद ही वुड ला इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, और उसके बाद लगभग वह 1 घंटा लेटा रहता था वाटर में। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबॉनी, और जब वो पानी से बाहर निकलता है तो उसकी स्किन जस्ट लाइक एबॉनी, डार्क वुड की तरह है, ब्लैक जो शाइन ब्लैक कलर है वैसी आबनूस लकड़ी की तरह चमकती थी उसके स्किन। ही वुड स्क्वेल, वो चिल्लाता है विथ प्लेजर, खुशी के साथ। एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, जैसे जैसे मैं उसकी पीठ पर पानी नीचे गिराता हूँ। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, उसे कान से पकड़ता हूँ। बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, क्योंकि यह सबसे अच्छा और ईजी तरीका है आसानी से एलिफेंट को ले जाने का। एंड लिव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और मैं उसे जंगल के दूसरे किनारे एज मीन ब्रिंक किनारे उसे छोड़ देता हूँ। वाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट, और मैं फॉरेस्ट में चला जाता हूँ टू गेट सम लुशियस ट्विग्स, लुशियस मतलब डिलीशियस टेस्टी ट्विग्स, टेस्टी स्टिक्स लेने के लिए फॉर हिज डिनर, उसके डिनर के लिए। वन हैज़ टू हैव अ शार्प हैच टू कट डाउन द ट्विग्स, और अगर हमें स्वीट ट्विग्स काटनी हैं तो उसके लिए हमें एक अच्छी शार्प हैच का ज़रूरत पड़ेगी। हैच होती है एक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बहुत शार्प होनी चाहिए। इट टेक्स हाफ एन आवर, और आधा घंटा लगता है टू शार्पन द हैच को शार्प करना, एक्स को शार्प करना। इफ़ अ ट्विग इज़ मटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, अगर ट्विग्स है वो मटिलेटेड है, मटिलेटेड मतलब बैड शेप में, अगर वो ट्विग्स बैड शेप में है तो वो जो एलिफेंट है डेफिनेटली उसको नहीं खाएगा, उसे टच भी नहीं करेगा। It was not an easy job to get twigs and saplings for कारी, और ये easy job नहीं है twigs लेना और saplings लेना कारी के लिए। I had to climb all kinds of tree, मुझे different trees पर चढ़ना पड़ता है to get the most delicate and tender twigs, ताकि मुझे soft और मुलायम tender twigs। As he was very fond of the young branches of the banyan tree, उसे बहुत शौक है नई branches खाना, ट्विग्स खाना, विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स, और वही ट्विग्स ऐसे हो गई हैं, ऐसे बन गई हैं जैसे कि कोई कैथेड्रल हो। कैथेड्रल मीन चर्च। I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Kari calling to me in the distance, और एक दिन मैं मार्च में जब कुछ टहनियाँ इकट्ठा कर रहा था, कुछ ट्विग्स लेने गया था, तब अचानक से मुझे दूर से कारी की आवाज़ सुनाई दी। आई सडनली हर्ड सम साउंड ऑफ कारी, डैट वो मुझे बुला रहा है। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, वो अभी बहुत यंग था। द कॉल वॉज मोर लाइक डेट ऑफ ए बेबी विद एन एलिफेंट, और वो कॉल ऐसे जैसे उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई बच्चा हो। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, मुझे लगा कि कोई उसे हर्ट कर रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, तो मैं अपनी ट्री से नीचे उतरा। एंड रन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और उसके पास गया भागते हुए। एज ऑफ द फॉरेस्ट मीन किनारा, फॉरेस्ट के अंतिम छोर तक वो गया। आई हैड लेफ्ट हिम, और जहाँ मैंने उसे छोड़ा था, बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर, मैंने चारों तरफ देखा, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, और मैं पानी के किनारे तक गया। एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, और मैंने देखा कोई काली सी चीज़ ब्लैक विच वॉज स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, कि वो ऊपर आने के लिए स्ट्रगल कर रही है, एफर्ट्स कर रही है। दैन इट रोज हाइयर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और यह वो ऊपर उठी चीज़, और इट वॉज अ ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और ये ट्रंक थी मेरे एलिफेंट की, कारी की। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग, मैंने सोचा कि वो डूब रहा है। एंड आई वॉज हेल्पलेस, मैं बिल्कुल हेल्पलेस हो गया। बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर, क्योंकि वो तो पानी में जंप नहीं कर सकता था। एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम, और उस
400 पाउंड्स वाले एलिफेंट को नहीं बचा सकता था, क्योंकि वो उससे ज़्यादा हैवी है। ही वॉज मच हायर देन आई, और मुझसे ज़्यादा लंबा है, ऊंचा है। बट आई सो हिज बैक राइज अबव द वाटर, लेकिन मैंने देखा उसकी जो बैक है, पीठ है, वो पानी के ऊपर आ रही थी। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई, जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, ही बिगेन टू ट्रम्पेट, वो चिल्लाने लगा। एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और शोर पर आने के लिए एफर्ट्स करने लगा। देन स्टिल ट्रम्पटिंग ही पुश मी इनटू द वाटर, और वह अभी भी ट्रम्प चिल्ला रहा था और मुझे उसे वाटर में, नदी में गिरा दिया। आई फेल इनटू द स्ट्रीम, आई सॉ अ बॉय लेइंग ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, मैंने देखा एक लड़का नीचे पड़ा हुआ था। ही हैड नॉट altogether टच द बॉटम, हालांकि वो पानी के ऊपर तैरा था, एकदम उसने बॉटम पार्ट को टच नहीं किया था। सम वॉट फ्लोर, थोड़ा ऊपर ऊपर तैरा था। आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर, और वो सरफेस ऑफ द वाटर मतलब ऊपर आया, टू टेक ब्रीथ, पानी की, टू हैव ब्रीथ, सांस लेने के लिए। एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग, और वहीं कारी खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड, और ऐसा लग रहा था कि उसके जो पैर हैं वो सैंड में प्लांट हो, उसे जमा रखे हैं। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच, और उसने अपने ट्रंक को फैलाया, आगे बढ़ाने की कोशिश की। लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइंड, और मेरे को आगे, ताकि उसकी सूंड जैसा मेरा हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। सो आई डाइव डाउन अगेन, और फिर से मैंने डाइव लगाई। पुल द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय, और उस बॉय को खींचा जो डूब रहा था, टू द सरफेस पर। बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, लेकिन मैं अच्छा स्विमर नहीं था। आई कुड नॉट swim ashore and the slow current was already dragging me down, चूँकि मैं अच्छा स्विमर नहीं था, अच्छा तैराक नहीं था, सो मैं जो शोर पर आकर तैर कर नहीं जा सकता था। और जो करंट, जो स्लो करंट था, जो गति वाली धार थी, was already dragging me down, और उसकी वजह से मैं वापस पानी में नीचे, वो मुझे खींच रही थी। Seeing us drift by in the current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk, came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. I raised up my hand to catch it. Slipped. I found myself going under the water again. So seeing us drift by in the current, जैसे कि नदी की जो करंट है, मतलब नदी की जो धारा है, हमें बहता देखकर कारी, who was usually slow, जो हमेशा धीरे रहता है, और ponderous, जो काफ़ी हैवी है, suddenly darted down. Darted mean pushed forward swiftly, आगे की ओर धकेला, उसे हमें आगे की ओर धकेला, like a hawk, जैसे कि हॉक करता है, बाज पक्षी की तरह उसने किया। एंड कम हाफ वे इन टू द वाटर, और आधी दूरी पर, पानी की आधी दूरी तक वह आ गया। वे आई सो हिम, जहाँ मैंने उसे देखा। स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक, और उसने अपनी सूंड को आगे बढ़ाया। एंड आई रेज अप माई हैंड, और मैंने अपना हाथ सूंड के पकड़ने के लिए ऊपर लाया, टू कैच इट, एंड स्लिप्ड, और वो फिर से फिसल गया। आई फाउंड माई सेल्फ, और मैंने पाया स्वयं को दोबारा अंडर द वाटर अगेन, कि मैं वापस से पानी में जा रहा हूँ। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, लेकिन मैंने देखा कि वाटर इतना ज़्यादा गहरा नहीं है। सो आई सैंक इन टू द बॉटम ऑफ द रिवर, तो इसलिए वो नदी के तल पर फिर से पहुंच गया। एंड डबल्ड माई फीट, और उसने अपनी फीट्स को डबल किया, दोहरा दिया। एंड देन सडनली किक द रिवर बैड, और उसने बॉटम ऑफ द रिवर, जो रिवर के जो बेड है, उसको पीछे से उसने पुश किया ताकि वो आगे की तरफ बढ़ सके। सो शॉट ऑफ वर्ड्स लाइक एन एरो, और उसने मूवमेंट किया रिवर में कि वो पीछे की तरफ पुश करके वो आगे की तरफ बढ़े, जैसे कि एरो को किया जाता है जब हम एरो को चलाते हैं, जो तीर की भांति ऊपर आ गया। एंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट के अलावा, इस बात के अलावा, डेट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय, कि मैंने एक डूबते हुए बालक को पकड़ रखा है, विद माई हैंड एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, और मेरी बॉडी वाटर के ऊपर आ गई। आई फेल्ट अ lasso अराउंड माई नेक, और मुझे लगा कि मेरी गर्दन के चारों ओर कोई रस्सी लपटी हुई है। दिस फ्राइटन मी, और इस चीज़ से मुझे बड़ा डर लगा। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग, और मुझे लगा कोई वाटर एनिमल है टू स्वेलो मी, जो मुझे खा जाएगा। आई हर्ड कारी स्क्वेलिंग, मैंने कारी की आवाज़ सुनी। आई न्यू इट वॉज द ट्रंक, मुझे पता था कि ये ट्रंक है। अबाउट माई नेक, कि उसकी, मेरी नेक पर उसकी ट्रंक है। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और उसने हमें अपनी ट्रंक से दोनों को शोर पर, किनारे पर खींच लिया।
कारी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनाना। कारी को बड़ा शौक है बनानास खाने का, अब उसे बहुत शौकीन हो जाता है। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प, वो हमेशा खुद की मदद करने में विश्वास करता है। मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, ताकि वो अपने फ्रेंड को कोई डिस्कम्फर्ट परेशानी में न डाले। विथ क्वाइट डिग्निटी कारी एक्सेप्ट द चाइडिंग ही नोज ही डिजर्व, और सहज डिग्निटी मतलब आप बोल सकते हैं कि गंभीरता के साथ कारी को डांट भी सहन कर लेता है। चाइडिंग मतलब स्कॉल्डिंग। ही नोज ही डिजर्व, और उसे पता है कि उससे मिस्टेक की है तो उसे वो डांट सुनने के लिए भी वो रेडी रहता है। कारी वॉज लाइक अ बेबी, कारी एक बेबी की तरह है। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, और उसे सिखाने की ज़रूरत पड़ती है, ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम, अगर आप उसे नहीं बताएंगे। व्हेन ही वॉज नॉटी, जब वो नॉटी है। ही वॉज अप टू मोर मिशीफ दैन एवर, तो वो और ज़्यादा शैतान हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट, वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर द राइप बनाना। एक फॉर इंस्टेंस मीन एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। वन डे, एक दिन, समबडी गेव हिम सम बनानास, किसी ने उसको बनानास दी खाने के लिए। वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव, और धीरे धीरे उसका टच डेवलप हो गया फॉर राइप बनानास के लिए। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स, हम उसके सामने लार्ज फ्रूट ऑफ प्लेट्स रखते थे। ऑन अ टेबल पर, नियर ए विंडो, जो विंडो के पास है, इन द डाइनिंग रूम में। सो वन डे ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल डिसअपियर, और एक दिन उस टेबल से जो प्लेट्स में जितने भी बनानास थे वो सारे गायब हो गए। एंड माई फैमिली ब्लेम द सर्वेंट फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस, और मेरी फैमिली ने सर्वेंट को ब्लेम किया, इसने सारे बनाना खा लिए। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन, फिर से फ्रूट्स डिसअपियर हो गए, मतलब गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, और ये ब्लेम मुझ पर था। आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, मुझे पता था कि मैंने नहीं किया। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स, और मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया अपने पेरेंट्स से। एंड द सर्वेंट से, फॉर आई वॉज श्योर दैट दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, और मुझे पता था कि ये डेफिनेटली सर्वेंट्स ने ही फल चुराए हैं। द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, द फ्रूट डिसअपियर, जब फ्रूट डिसअपियर हुए, आई फाउंड अ had taken all, I was sure they had taken all the fruit. The next the fruit disappeared. I found a banana all smashed up in Kari's pavilion. मैंने देखा कि एक बनाना स्मैश अप हुआ वहाँ पर कारी के पैवेलियन में है। दिस सरप्राइज मी, इससे वो और ज़्यादा सरप्राइज हो गया। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट, और उसने कभी फ्रूट नहीं देखा। एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, वो हमेशा ट्विग्स खाता है, बहुत छोटी छोटी सॉफ्ट टहनियाँ खाता है। नैरेटर, जो आराम से बैठा हुआ था इन द डाइनिंग रूम में, वंडरिंग, और वो सोच रहा था, सरप्राइज था, वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट, कि मैं कुछ फ्रूट्स खाऊं बिना परमिशन के पेरेंट्स की। अ लॉन्ग ब्लैक थिंग, एक लंबी सी ब्लैक थिंग आई, जैसे मच लाइक अ स्नेक की तरह, सडनली कैम थ्रू द विंडो से आई, डिसअपियर विद ऑल द बनाना, और सारे बनानास एक बार में ही गायब हो गए। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, मैं बहुत ज़्यादा डर गया। फ्राइटेंड मतलब डरना, अफ्रेड, बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनाना, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा कि स्नेक बनाना खा रहे हैं। आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक, और मुझे लगा कि ये डेफिनेटली बहुत हॉरिबल स्नेक होगा। टेरिबल मीन हॉरिबल स्नेक होगा। डैट वुड स्नेक इन, जो कि अंदर आया है, एंड टेक फ्रूट, और फ्रूट खा रहा है। आई क्रैप्ड आउट ऑफ द रूम, वो रूम से बाहर निकला। क्रैप्ड आउट मतलब मूव्ड आउट, रूम से बाहर निकलना। विद ग्रेट फियर, डर के मारे। इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस, घर से फटाफट बाहर निकल गया। फीलिंग श्योर डैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, और उससे वो श्योर था कि ये स्नैक डेफिनेटली फिर से आएगा। एंड ईट ऑल द फ्रूट्स, और ये सारे फ्रूट्स खा जाएगा। एंड किल ऑल ऑफ अस, और हम सबको भी मार देगा। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर निकला, आई सो कारीज बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पैवेलियन, तो मैंने देखा कारी की जो बैक है, इट वॉज डिसअपियर, कि वो जा रहा है पैवेलियन में, अपने पैवेलियन में जा रहा है। आई वॉज सो फ्राइटेंड, मैं बहुत डरा हुआ था। सो आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप,
और मुझे लगा कि ये मैं इसकी कंपनी में रहूँगा तो थोड़ा चेयर अप हो जाऊँगा, मुझे खुशी मिलेगी। सो आई रैन आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे पीछे गया। इनटू द पैवेलियन में आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनाना, और मैंने देखा कि वो बनानास खा रहा था। आई स्टूड स्टिल इन अस्टॉनिशमेंट, और वो बहुत सरप्राइज हो गया। अस्टॉनिशमेंट मीन्स सरप्राइज होना। द बनानाज वर लेइंग स्ट्यून ऑल ओवर अराउंड हिम, उसके आसपास चारों तरफ से बनाना थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज टंग, उसने अपनी सूंड फैलाई। रीच फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और उसने अपनी सूंड फैलाई और वहाँ से बनाना लिया जहाँ पे मैं खड़ा था। दैट इंस्टेंट, उसी मोमेंट, द ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नेक, और मुझे लगा कि ये ट्रंक जस्ट लाइक अ ब्लैक स्नेक की तरह लग रही है। आई रियलाइज, मुझे रियलाइज़ हुआ दैट द कारी वॉज अ थीफ, कि कारी ही चोर है। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया। पुल्ड आउट बाय द एयर, उसको उसके कान से खींचा। जॉयसली, और खुशी के साथ। शोड माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स को दिखाया दैट इट वॉज द कारी एंड नॉट आई दैट हैड इटन ऑल द फ्रूट्स, मैं नहीं हूँ जिससे कि सारे फ्रूट्स का ये कारी है। फ्रॉम द फ्रूट दिस मैनी वीक्स, इतने दिनों से ये सारे फ्रूट्स कारी ही खा रहा था। देन आई स्कोल्डेड हिम, और मैंने उसे डांटा। फॉर मोर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, एलिफेंट्स वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझते हैं जितने कि चिल्ड्रन नहीं। एंड आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग विथ फ्रूट यू विल बी विप्ड, अगर नेक्स्ट टाइम मैंने देख लिया कि तुमने फ्रूट्स चोरी किए हैं, खाए हैं, यू विल बी विप्ड, तो डेफिनेटली तुम्हें डांट पड़ने वाली है और उससे पिटाई होने वाली है। ही न्यू डैट वी वर ऑल एंग्री, हम लोग बहुत गुस्सा हैं उससे। इवन द सर्वेंट्स भी। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड, अब उसका जो प्राइड था उसको भी चोट पहुंची, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया था। एंड डैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, इसके बाद उसे कुछ भी नहीं डाइनिंग रूम से चुराया। एंड फ्रॉम देयर ऑन इफ़ एनीबडी गिव हिम एनी फ्रूट, अगर कोई उसे फ्रूट देता है, ही ऑलवेज स्क्विल्ड एज इफ़ टू थैंक दैम, और वो जोर से लंबी आवाज़ निकालता है जैसे कि वो उसको थैंक यू बोल रहा है। एन एलिफेंट इज़ विलिंगली टू बी पनिश फॉर हैविंग डन रॉन्ग, बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन। सो एन एलिफेंट, जो एलिफेंट है, इज़ विलिंगली टू बी पनिश, उसको डेफिनेटली आप पनिश कर सकते हो फॉर हैविंग डन रॉन्ग, अगर उसने कुछ गलत किया है। बट इफ़ यू पनिश हिम, अगर आप उसे पनिश करोगे और उसकी कोई मिस्टेक नहीं है, विदाउट एनी रीज़न, बिना कोई रीज़न के लिए, तो डेफिनेटली ही विल पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, और वो डेफिनेटली आपको भी आपसे बदला ले सकता है। कारी इज़ ए फास्ट लर्नर, बहुत जल्दी सीख लेता है। ही मास्टर ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज टॉट, और ही इज़ अ मास्टर, वो सभी प्रकार के जो सिग्नल्स है उन पे मास्टरी है उसमें, जो भी उसे सिखाया जाता है। देयर इज़ अ वन लेसन, एक लेसन है। दो डैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न, और उसको सीखने में 5 साल लग जाते हैं। कारी इज़ नो एक्सेप्शन, और कारी भी एक्सेप्शनल एनिमल नहीं है, उसे भी बहुत टाइम लगा ये सीखने में। An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast, when to go slow down. हाथी को डेफिनेटली सिखाना चाहिए कि कब वो बैठे, कब वो चले, और कब उसे फास्ट तेज़ी से चलना है, when to go slow, और कब धीरे। You teach him these things as you teach a child. आपको उसे वैसे ही सिखाना पड़ेगा जैसे आप किसी बच्चे को सिखाते हैं। If you say धात एंड पुल हिम बाय द एयर, उसे कान से खींचते हो, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, तो वो सीख जाएगा कि आप उसको बिठा रहे हो। सिमिलरली इफ़ यू से माली, अगर आप उसे माली बोलोगे, पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और उसकी ट्रंक को खींचोगे आगे की तरफ, तो ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, तो उसे ये सिग्नल मिल जाएगा कि उसे चलना है। कारी लर्न माली आफ्टर 3 lessons, बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धात। कारी माली शब्द को 3 बार में सीख गया था, 3 लेसन्स के बाद, बट 3 weeks टू लर्न धात, और धात सीखने उसे 3 सप्ताह लग गए। ही वॉज नॉट गुड एट सिटिंग डाउन, वो बैठने में अच्छा नहीं था, मतलब वो एक्सपर्ट नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, और आपको पता है कि एलिफेंट को बैठाया ना सिखाया क्यों जाता है। वाई एलिफेंट वॉज टॉट टू सिट, क्योंकि बिकॉज ही ग्रोज टॉलर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, टॉलर देन
यू, जितने कि हम लोग नहीं होते हैं। हु टेक केयर ऑफ हिम, कौन उनका ध्यान रखेगा। सो डैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years old, जब वो 2 या 3 साल के होते हैं, यू कैन ओनली रीच हिज बैक, आप आराम से इजीली पहुंच सकते हो उनकी बैक पर विद अ लैडर, स्टेयर्स से, लैडर से, सीढ़ी से। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन, तो इसीलिए उन्हें बैठना सिखाया जाता है बाय सेइंग धात, धात बोल के, सो डैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक, तो आप इजीली उनकी बैक पर चढ़ जाएं। फॉर हु वुड वांट टू कैरी ए लैडर अराउंड ऑल द टाइम, और कौन हमेशा अपने साथ लैडर को यूज़ करेगा, उसके ऊपर बैक पर बैठने के लिए हमेशा कौन साथ में लेके चलेगा, सीढ़ी। सो द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच द एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एलिफेंट को सिखाना है मास्टर कॉल। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न, और इसको सिखाने में लगभग 5 साल लग जाते हैं इट प्रॉपरली। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, मास्टर कॉल एक स्ट्रेंज हिसिंग साउंड है। हिसिंग इज द साउंड ऑफ अ स्नेक, हाउलिंग, हाउलिंग साउंड, howling which is a sound making a high pitch sound as it a snake and a tiger were fighting, जैसे कि जो snake है और tiger है वो आपस में लड़ रहे हैं, and you have to make that kind of noise in his ear, और ऐसी तरह की आवाज़ आपको क्रिएट करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है in his ear, उसके कानों में आपको कहनी पड़ती है। मानो कोई सांप और जो टाइगर है लड़ रहे हैं, और यह बात आपको एलिफेंट के कान में बोलनी है। एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो एलिफेंट से करने के लिए व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल, और जब आप उसको मास्टर कॉल दे रहे हो, मतलब आप मास्टर कॉल का साइन दे रहे हो कि आपको मास्टर कॉल क्रिएट करना है। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, अगर आप खो चुके हैं जंगल में, एंड देयर इज़ अ नो वे आउट, और आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक, और सब कुछ ब्लैक है, अंधेरा हो गया है, एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, और सिर्फ स्टार्स हैं ऊपर, एंड यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और आप बहुत लंबे टाइम तक नहीं रुक सकते हैं वहाँ पर। द ओनली थिंग टू डू, और सिर्फ वो आपको क्या कर सकते हैं, दैन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, आप मास्टर कॉल दीजिए, एंड एट वंस, और उसी टाइम द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री, और वो जो एलिफेंट है ही विल पुल डाउन द ट्री, वो ट्रीज़ को उखाड़ देगा विद हिज ट्रंक, अपनी ट्रंक से, एंड दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, और इस आवाज़ से सारे एनिमल्स डर जाएंगे। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, और ट्री गिर जाएंगे एक एक करके। मंकीज वैक फ्रॉम देयर स्लीप, मंकी उठ जाएंगे अपनी नींद से। रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और वो इधर उधर भागेंगे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे। एंड यू कैन सी दैम इन द मूनलाइट, और आप उनको मूनलाइट में डेफिनेटली देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन, और आप स्टैग्स को भी देख सकते हो, जो डियर होता है, मेल डियर, भागते हुए, रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो, वो इधर उधर भाग रहे हैं। एंड यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर, एंड यू कैन हियर, आप सुन सकते हैं टाइगर की भी साउंड दूर से। इवन ही इज़ फ्राइटन, इवन वो भी डरा हुआ है। दैन द एलिफेंट पुल डाउन द नेक्स्ट ट्री, और एलिफेंट फिर से एक और ट्री गिरा देता है। एंड द नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट, एंड सून यू विल फाइंड, और तब आपको यू विल फाइंड, आपको मिलेगा दैट ही हैज़ मेड ए रोड राइड, कि उसने एक पूरा रास्ता बना दिया है थ्रू द जंगल, जंगल से टू योर हाउस, आपके घर तक का। मतलब ये सारी चीज़ें करके वो जो एलिफेंट है वो आपके लिए एक रास्ता बना देता है जंगल से घर जाने का। तो मास्टर कॉल सिखाने का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर हम जंगल में खो जाते हैं और हम मास्टर कॉल करते हैं एलिफेंट को, तो वो डेफिनेटली हमें शो करेगा, रास्ता दिखाएगा, और इस तरीके से उसका रास्ता वो ह्यूमन बींग्स के लिए क्रिएट करता है।